Students. Today we'll study Footprints Without Fate. The story is The Making of a Scientist. It is second part. It has been written by Robert W. Peterson. Right now we'll know more about the story how Richard E. Bright was doing his work as a scientist for especially the invention or collection for different types of butterfly, monarchs or different butterflies. Okay, right now know the more story. Then in 7th grade, he got a hint of what real science is when he entered a country science fair and lost. It was really a sad feeling to sit there and get everything while everybody else had won something. Ebright said his entry was slides of fog tissues, which he showed under a microscope. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. राइटर आगे ईब्राइट के बारे में बोल रहे हैं कि 7th क्लास में उसको पता चला कि ओरिजिनल साइंस क्या होती है। जब उसने एक साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया तो वो हार गया। असल में वहाँ बैठना और कुछ भी पा लेना, जबकि अन्य सभी वहाँ कुछ न जीत जा रहा है न कोई ऐसा कुछ हो रहा है, बड़े उदासी भरा था। एब्राइट ने कहा वहाँ मेले से उसने मेढक के तंतुओं को स्लाइड माइक्रोस्कोप पर दिखाया था। उसने महसूस किया कि जितने विनर हैं रियल में प्रयोग करने की कोशिश की थी, केवल एक सिंपल एग्जीबिशन में एक प्रदर्शन ही था, एक्सपोजर था जो प्रस्तुत नहीं किया गया। Already, the competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. I knew that for the next year's fair, I would have to do a real experiment, he said. The subject I knew most about was the insect work I had been doing in the past several years. अब आगे कह रहे हैं कि प्रतियोगिता की भावना जो एब्राइट से पहले से ही थी दिखने लगी। कह रहे हैं वो कि मैं समझ गया कि अगले वर्ष एग्जीबिशन में मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट में सबसे अधिक जानता था वह था इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट करना, जो एवराइट पिछले कई वर्षों से करता आ रहा था। So he wrote to Dr. Urquhart for ideas, and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in country and international science fair. अब इस तरह से डॉक्टर आर्कहर्ट को इब्राइट ने लेटर लिखा। तुरंत उनके पास बहुत सारे सजेशंस आने लगे। उन सारे सजेशंस में इब्राइट को हाई स्कूल की पढ़ाई के दौरान व्यस्त रखा और फिर इंटरनेशनल या नेशनल साइंस एग्जीबिशन में इनाम की तरफ वो बढ़ने लगे। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be cured by a beetle. He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real results, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. अब 8th क्लास के प्रोजेक्ट के लिए इब्राइट ने उस कारण का पता लगाने की कोशिश की जिसमें वायरल बीमारी होती थी और कुछ साल बाद तितलियां मर जाती थी। एब्राइट जानने लगा कि बीमारी बीटल नामक कीड़ा से फैलता है, इसलिए उन्होंने उन इंसेक्ट्स के बीच तितलियों को पालने की कोशिश की। कहने लगे कि मुझे कुछ भी रियल रिज़ल्ट नहीं मिला, पर इब्राइट कहते हैं कि आगे बढ़ते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए, दिखाया कि इस तरह से कैसे एक्सपेरिमेंट को वास्तविक किया जाए और बाद में वो जीत हासिल किए। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. The theory was the viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds, so the more they look like monarchs,
the less likely they are to become a bird's dinner. अगले साल साइंस एग्जीबिशन में उनका प्रोजेक्ट इस थ्योरी का एक्सपेरिमेंट करने वाला था। वायसराय तितलियाँ मोनार्क तितलियाँ की नकल उतारती हैं, यही उनका सब्जेक्ट था। अब सिद्धांत यह था कि वायसराय जो तितलियाँ थी मोनार्क जैसी दिखती थी, क्योंकि मोनार्क तितलियाँ चिड़ियों को खाने में अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ वायसराय तितलियाँ पक्षियों को बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए जितना अधिक वो मोनार्क जैसे दिखेंगे उतनी ही पक्षियों को कम भोजन बनेगी, यानी बच जाएंगी। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. He found that a starling would not be eat ordinary bird. It would all the monarchs it could get. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarchs. This project placed first in zoology division and the third overall in the country science fair. कहते हैं कि एब्राइट का ये प्रोजेक्ट देखना था कि क्या मोनार्च तितलियाँ को पक्षी खाते हैं। उसने पाया कि एक मैना साधारण भोजन नहीं करती, वह उन सभी मोनार्क तितलियों को खा जाएगी जो उसे मिलेगी। एब्राइट ने बताया कि दूसरे लोगों की मदद में खोज ने यह पता चला कि वायसराय तितलियाँ मोनार्क तितलियों की जैसी नकल करती हैं। इस प्रोजेक्ट को जूलॉजी साइंस में पहला तथा पूरे काउंटी विज्ञान मेले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। In his second year at high school, Richard Everett began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cell. The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch's pupa? Everyone assumed the spots were just ornamental. Ebright said, but Dr. Urquhart didn't believe it. To find the answer, Ebright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एवराइट ने एक रिसर्च शुरू किया, जो उन्होंने एक अनजान इंसेक्ट के हार्मोन की खोज करने लगे। अब इनडायरेक्ट रूप से यह इन्वेंशन उनको एक कोशिका के जीवन के नए प्रिंसिपल की तरफ ले गया। जिस प्रश्न का जवाब वो ढूंढने की कोशिश करने लगे थे वो आसान था। एक मोनार्च पीपा के ऊपर 12 छोटे छोटे गोल्डन धब्बे जो थे, उनका उद्देश्य था इसका रिसर्च का। सभी ने मान लिया कि ये धब्बे सिर्फ जनरल थे, सजावटी दिखावटी थे। एवराइट कहते हैं कि डॉक्टर अर्कहार्ट ने इस पर विश्वास नहीं किया। इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए एवराइट और दूसरे स्टूडेंट जो साइंस वाले थे, पहले एक डिवाइस बनाया जो दिखाता था कि धब्बा जो था स्पॉट एक हार्मोन तैयार कर रहे हैं जो तितली के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था। द प्रोजेक्ट वॉन एवराइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर and entry into the International Science and Engineering Fair. There he won third place of zoology. He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch's pupa. That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army lab during the summer. अब इस प्रोजेक्ट ने एब्राइट को काउंटी मेले में फर्स्ट प्लेस दिलवाया और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उनको एंट्री दिलवा दी। वहाँ जूलॉजी साइंस में उन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया और समर सीजन में वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट में रिसर्च की एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का चांस मिल गया। अब एक हाई स्कूल के जूनियर के रूप में रिचर्ड एवराइट मोनार्क प्यूपा पर अपने रिसर्च को जारी रखा। उस वर्ष उन्होंने इंटरनेशनल मेले में इस प्रोजेक्ट को पहला स्थान प्राप्त किया। अब गर्मी के सीज़न में सेना वाली जो लेबोरेटरी होती थी उन्हें काम करने का एक और मौका मिल गया। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर
He grew cells from a monarch's wing in a cultured and showed that the cells would divide and develop into normally butterfly wing scale only if they were fed the hormone from the gold spots. That project was first place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the Army lab and at the lab of US Department of Agriculture. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the development Department of Agriculture's lab and did more work on the gold spots hormone. Using the lab's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अब अपने सीनियर साल में बड़ी क्लास में एक और स्टेप बढ़े। उन्होंने मोनार्क बटरफ्लाई के पंख से सेल को उगाया और दिखाया कि जितनी सेल होती हैं वो डिवाइडेड हो जाती हैं। जनरल बटरफ्लाई के पंख में ये वो डेवलप होती हैं, फिर सभी उन्हें कुछ गोल्डन स्पॉट्स मिलने वाले हार्मोन मिले। इस प्रोजेक्ट में इंटरनेशनल मेले में उन्होंने जूलॉजी साइंस में पहले स्थान प्राप्त किया। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने अपनी सारी गर्मी छुट्टी मिलिट्री लैब में और अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करने में बिता दिया। नेक्स्ट गर्मी में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की और एब्राइट फिर से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में प्रयोगशाला में गए और गोल्डन स्पॉट्स से मिलने वाली हार्मोन पर रिसर्च करने लगे। उन लेबोरेटरी के जनरली जितने इंस्ट्रूमेंट थे उनका प्रयोग किया और हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को पहचानने में सफलता मिली। A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of a hormone. When he saw those photos, Ebright didn't shout, "Eureka!" or even, "I have got it." But he believed that, along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance of the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Therefore, DNA is the blueprint of life. इस तरह से अपने जूनियर ईयर में 1.5 साल बाद एब्राइट सेल डिवीज़न के बारे में जीवन का अपना नया थ्योरी ईजाद किया। अब विचार तब मिला जब वो हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर को एक्सरे फ़ोटो देख रहे थे। उन दिनों एक्सरे फ़ोटो को देखकर एब्राइट ने यूरेका या मुझे मिल गया ऐसा कोई शब्द नहीं बोले, ना ही चीखे, बट उन्होंने विश्वास जताया कि उनके इंसेक्ट के हार्मोन की खोज के साथ उन सारे पिक्चर्स को जूलॉजी साइंस के एक अनबूझ पहेली की जवाब देने के लायक बन गए। इस तरह से एक सेल अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ लेती है। डीएनए किसी सेल के न्यूक्लियस का एक ऑब्जेक्ट होता है जो हेरिडिटी को नियंत्रित करता है। ये सेल के रूप में और उनके जो क्रियाकलाप होते हैं ये तय करता है। इस प्रकार डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है। एब्राइट एंड हिज कलीग रूममेट जेम्स आर रॉन्ग worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honor, second in his class of 1510. Ebright went on to become a graduate student, research at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. एब्राइट और उसके कॉलेज के सहपाठी जेम्स आर वोंग ने सारी रात ये बिता दी कि एटॉम्स की जो तस्वीर बनाने में और प्लास्टिक के मॉडल बनाने में, ये इससे उन्होंने दिखाया कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाद में उन्होंने दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत को एक थ्योरी का विवरण डिस्क्राइब किया। रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे बड़े सम्मान के साथ तकरीबन 1510 छात्रों की उस क्लास में सेकंड स्थान प्राप्त किया और जब ग्रेजुएट किए तो उन्होंने जानने वाले बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। एब्राइट बाद में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्च
रिसर्चर के रूप में, अनुसंधानकर्ता के रूप में बन गए। वहाँ पर उन्होंने न्यू प्रिंसिपल को परखने के लिए लेबोरेटरी में काम शुरू कर दिया। All the theory proves correct it will be a big step toward understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other disease. All of this is possible because of Ebright's scientific curiosity. His high school research into the purpose of the spot on a monarch's pupa eventually led him to his theory about cell life. Richard Ebright has been interested in science since the first began collected butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other insects. Ebright also became a champion debate and public speaker and a good chemist and all around outdoor person. He is also an expert photographer. Ebright also became a champion debate and public speaker and a good cognitive and all around outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibit. एब्राइट और उसकी कॉलेज के सहपाठी जेम्स और आर्मोंग ने सारी रात इस काम को करने में बिताया था। अब जीवन की प्रक्रिया को समझते हुए वे एक बड़ा कदम उठाया, शायद इन नए विचारों को जन्म देगा जो कुछ इस प्रकार कैंसर और अन्य बीमारियों को रोक सके। एब्राइट की साइंटिफिक जिज्ञासा के कारण यह संभव हुआ। पिपुआ के स्पॉट पर किए गए हाई स्कूल का रिसर्च उनको सेल के बारे में, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में ले गया जानकारी देने के लिए। रिचर्ड एब्राइट को विज्ञान में ज़्यादा इंटरेस्ट थी। जब उसने सारे बटरफ्लाई को इकट्ठा करना शुरू किया, पर इतनी गहराई से नहीं कि उसे दूसरी चीज़ों में भाग लेने का समय ही नहीं मिलता। एब्राइट एक चैंपियन वक्ता तथा एक अच्छा नाविक और सभी तरह के रुचियों से भाग लेने वाला व्यक्ति था। वह एक परफेक्ट फोटोग्राफर भी है। विशेषकर प्रकृति तथा विज्ञान की प्रदर्शनियों में एग्जीबिशन को फ़ोटो खींचना उनकी इच्छा थी। इन हाई स्कूल, रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट स्टूडेंट because learning with easy, he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard Vedra, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wehrer was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas, Ebright said. Richard would always give that extra effort. Mrs. Wehrer said, what pleased me was here was the person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterfly and his other insects. हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सीधा साधा विद्यार्थी रहा था, क्योंकि सीखना उनकी एक सरल स्वभाव थी। अपनी काफ़ी ऊर्जा, एनर्जी वो जनरल स्टेट्स के क्लब में वाद विवाद प्रतियोगिता तथा प्रारूप की तरफ उनका मन मोड़ दिया। उन्हें कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनकी उन्होंने काफ़ी प्रशंसा किया। रिचर्ड ए वेयर उनके सामाजिक अध्ययन के अध्यापक थे, सोशल स्टडी टीचर और दोनों क्लबों के सलाहकार। मिस्टर वेरर उनके लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कहते हैं कि उन्होंने मुझे नए विचार दिए। रिचर्ड हमेशा एक्स्ट्रा प्रयास करता रहता था, ऐसा मिसेस वेरर ने बताया। उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ अच्छी लगती थी वह थी मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति जो रात में 3 या 4 घंटे बाद शोध करता था और तितलियों तथा अन्य कीटों पर किए गए शोध को, रिसर्च को साथ साथ नोट करता था। Richard was competitive, Mr. Werer continued, but not in a bad sense. He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reason, he wants to be the best. And that is one of the ingredients in the making of scientist. Start with a first-rate mind and curiosity and mix in the will to win for the right reason. Ebright has these qualities. For the time, the book The Travels of Monarch Extra opened the world of science to him.
रिचर्ड इवराइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। कहते रिचर्ड के अंदर एक प्रतियोगिता की भावना थी। ऐसा मिसेस वेरर ने बात को जारी रखा कहते हुए कि लेकिन एक बुरे रूप में वो कंपटीशन को नहीं लेते थे। आगे कह रहे हैं कि रिचर्ड इब्राइट सिर्फ इसलिए जीतने में रुचि रखते थे कि उसे विन करना, जीतना और इनाम जीतना ऐसा उनका पर्पस नहीं था। बजाय वो सीखना चाहते थे, जीतना चाहते थे, ताकि उनका जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो सके और हर तरह वो सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते थे। साइंटिस्ट बनने का वह एक महत्वपूर्ण कारण था कि वो बहुत इंटेलिजेंट बुद्धि वाले थे। उनकी डिज़ायर उनका खास था कि जीतने की इच्छा उनकी जो उचित कारणों का कारण बन गया। वही डिज़ायर उनके जीत की तरफ ले गए। एब्राइट में 3 गुण थे स्पेशली, जिसमें मोनार्क एक्स की यात्राएं नामक पुस्तक ने विज्ञान की दुनिया को उनके लिए खोल दिया। तब से रिचर्ड एब्राइट ने अपने साइंटिफिक डिज़ायर को कभी भी लॉस्ट नहीं होने दिया। ये तो स्टोरी थी एब्राइट की बटरफ्लाई की रिसर्च पर, जिसे रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन ने लिखा है। अब आप ग्लोसरी में भी देखेंगे कैसे कैसे वर्ड्स हैं, क्या मीनिंग है। फर्दर विल स्टडी अबाउट द क्वेश्चन आंसर।